A very good morning to all the students. So today I am going to start your first chapter, and the name of chapter is sources of food. As you all see that these are the contents of your book, and there are total 17 chapters, and the name of last chapter is garbage in garbage out. Okay, so let's start with sources of food. So this is the chapter. So as you all know that before starting the chapter, that humans need food to work, to do anything. We need energy, and like any vehicle or any type of machine, they need energy to work. If you will talk about any car, then it need diesel, petrol. So if you are talking about energy, then humans also need energy, and living things get energy from what? This is a question to all of you, that living things get energy from what? Living things get energy from the food that we eat. So we will simply say that food is that fuel that our body need, and our body need food as a fuel to get energy, and also to repair these damaged cells and tissues. if you'll get injured, then अगर आपको कभी इंजरी होती है, तो आपके जो सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हुए हैं, उसको रिपेयर भी जो करते हैं वो आपके फूड ही करते हैं. दैट्स वाई डॉक्टर ऑलवेज सजेस्ट यू टू drink a to drink a lot of water, and to eat a balanced diet. Okay, so actually food provides us everything that we need. Like, it protects us from various diseases. It is here in fourth point. You can see some important functions of food are to provide energy to work and play, nutrients for the growth of our body, nutrients for the maintenance and repair of the body cells and tissues, protection from diseases to keep us fit and healthy. These all have, I think, in our last class we had a discussion about all of these. So, okay, so moving on, food variety. So, you all know that in India there are 29 states, and in every state there are different type of food you'll get. सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू ऑल. ये आप सबके लिए होमवर्क है कि जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के आपको क्या पता होने चाहिए कि कौन से स्टेट में कौन से टाइप के फूड. आप अगर कभी भी ट्रैवल करते हैं वन स्टेट टू अनदर, देन आपको कौन से फूड वहाँ मिलेंगे, मेनली जो वहाँ के कुजिन रहेंगे वो क्या रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो क्लास 6 हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ क्लास पार्टी टुडे. सो क्लास 6 ने क्या किया? अगर आप अभी स्कूल आ रहे होते तो आपको पता चलता. हियर यू कैन सी क्लास 6 हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ क्लास पार्टी टुडे, एंड what they have taken from their homes. Shweta has taken idlis in her tiffin box. Rahul has sandwiches. Nikita puris. Raj sprouted bean salad. So every student has a different different food for that party. So there you can see the variety of food items. So that's why this is known as food variety. Now we will talk about ingredients. So what are ingredients? So the ingredients are the raw materials needed to prepare any food. जितने like अगर आपने देखा होगा तो जब हम किसी भी हाउस को बनाते हैं, किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं, तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज़ होता है. लाइक यू यूज़ सीमेंट, bricks, sand. These all you need. So these all are known as ingredients. And if you are talking about food, then the ingredients are
which are needed, like salt. If you will make tea, then what are the ingredients to make tea? दिस इज़ अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। टी के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम इंग्रेडिएंट बोलेंगे। ओके, सो इंग्रेडिएंट टी के लिए कौन कौन सी होंगी, ये आप लोग मुझे लाइव क्लास में आंसर देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट paragraph. For example, if you want to cook rice at your home, then what are the ingredients that you need? This also you have to give me answer, because I think all you should know about this. Okay, now I will tell you an important information there's for you. Activity 1, 2, 3, 4, this all I'll make one video, another video for you all, and a separate video for all 4 activities. After this video you can watch that video also. So moving forward, इफ़ विल टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ फूड, अगर अब हम सोर्सेज ऑफ फूड की बात करें तो फूड आता कहाँ से है, उसकी क्या सोर्स होती है, हमें फूड कहाँ से मिलते हैं। सो यू ऑल नो दैट देयर आर how many living things are there? How many living things are there? There are 3 types of living things: human beings, plants, and animals. So if we want to eat something, then from where we get? There are 2 options only. One is plants and another one is animal. Okay, first is plant and second is animal. So food from plants. You all know about photosynthesis, कि photosynthesis क्या होते हैं? I think you all know. And what are the things which are essential for photosynthesis? Carbon dioxide, water, chlorophyll, and sunlight. These all green plants need to prepare their own food, and because they prepare their own food by their own, वो खुद अपना food prepare करते हैं, that's why they are known as producers. अगर आपको कोई पूछे कि what are producers and why they are known as why they called as producers, so you can simply say that green plants are known as producers because they produce or they prepare their own food. अपने खुद का वो फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. And one more interesting thing is that they don't prepare only for only like if any guests are coming in your home. अगर कभी गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में, if 5 guests are coming, तो आप सिर्फ 5 के लिए ही नहीं बनाएंगे फूड को. क्लियर? तो फूड भी वैसे ही करते हैं. फूड सिर्फ उतना ही जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ उतना ही फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं जितना उसे रिक्वायर होता है. दे एक्चुअली प्रिपेयर मोर फूड देन दे एक्चुअली रिक्वायर. उनको जितनी ज़रूरत होती है उससे वो ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं. बट हियर अ क्वेश्चन अराइजेस कि वो उस एक्स्ट्रा फूड का क्या करते हैं, और वो उस एक्स्ट्रा फूड को फ्रॉम वेयर दे स्टोर दैट एक्स्ट्रा फूड. लाइक हम लोग अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करते हैं? वी प्रिपेयर आवर ओन फूड इन आवर किचन. ओके, इन आवर किचन. एंड वी और हम क्या करते हैं, अपने उस फूड को कहाँ रखते हैं? किचन में ही रखते हैं. बट दे स्टोर देयर एक्स्ट्रा फूड इन द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ दैट प्लांट. अगर कोई भी प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो अपने बॉडी पार्ट्स, जितने उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें अलग अलग जगह पे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसके फूड, एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है जितना उसे ज़रूरत होता है. दी फूड दैट दे नीड दे स्टोर. So the food that plant need is prepared, and the extra food is stored in different body parts of the plant. And you know that
this extra food is actually eaten by human beings. जितने एक्स्ट्रा फूड उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जा कर के क्या हो गए हैं, स्टोर हो गए हैं, उनको यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग्स के थ्रू. ह्यूमन बींग्स उस पूरे फूड को यूज़ करते हैं. एंड हाउ ह्यूमन बींग्स यूज़ दिस एक्स्ट्रा फूड, लेट्स सी. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है आई थिंक आप लोगों के लिए कि जितने एक्स्ट्रा फूड वो प्रिपेयर कर रहा है और वो स्टोर कर रहा है अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, उसे एक्चुअली कौन यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं. एंड वी गेट एक्चुअली न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर. ओके, सो वी गेट we use different body parts, and the main question is that there is a question. Listen carefully. What we get from plants? This is a question to you all, that what we get from plants. हमें plants से क्या मिलता है? So we get cereals, pulses, vegetables, fruits, spices, oil, sugar and beverages from plants. अब ये क्या होते हैं? Let's see कि सीरियल्स क्या होते हैं. सीरियल्स, पल्सेस, ये होते क्या हैं? ओके, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सीरियल्स एंड पल्सेस. बहुत बड़ा डिफरेंस है सीरियल्स और पल्सेस के बीच. सो सीरियल्स आर एक्चुअली ग्रेन्स. जो ग्रेन्स होते हैं उसे हम सीरियल्स कहते हैं. एंड जो पल्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर कॉल्ड पल्सेस एंड सीरियल्स आर एक्चुअली ग्रेन्स. तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. क्या होंगे फर्स्ट डिफरेंस इसके, कि जो सीरियल्स होंगे उसे हम ग्रेन्स बोलते हैं, एंड जो पल्सेस होंगे वो प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उसे हम पल्सेस बोलते हैं. अच्छा, ओके, सो आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा होगा इसमें, तो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ. इसके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं सीरियल्स के एग्जांपल्स. सीरियल्स आर एक्चुअली ग्रेन्स एंड द एग्जांपल्स आर राइस, wheat, like you can see here. See, rice, wheat, maize, which is also known as corn, then oats, बाजरा. ये सभी क्या है आपके? ये सभी हैं सीरियल्स. ओके, सीरियल्स क्या होते हैं? ग्रेन्स होते हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं. दीज आर ऑल विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. तो हमें प्लांट से जो ये राइस, वीट, मेज, ओट्स एंड बाजरा मिल रहे हैं उसे हम सीरियल्स बोलते हैं. क्लियर? ओके, बट वॉट आर द मेन फूड प्रिपेयर यूजिंग सीरियल्स? अब आप लोगों को पता है ना कि कौन कौन से फूड प्रिपेयर करते हैं हम इन पूरे सीरियल्स को यूज़ करके. राइस यूज़ करते हैं हम, वीट भी यूज़ करते हैं, मेज़ यूज़ करते हैं, ओट्स, बाजरा हम यूज़ करते हैं इन सबको. बट इससे कौन कौन से फूड प्रिपेयर होते हैं? लेट्स सी. इन सभी सीरियल्स को यूज़ करके कौन कौन से फूड प्रिपेयर होते हैं? ब्रेड, रोटी, पुलाव, इडली, उपमा, हलवा, पोहा, खाकरा, ये सभी को यूज़ करके हम क्या करते हैं? These are actually cereals which we get from plants. Now talking about pulses. तो pulses क्या होते हैं? Seeds होते हैं. Seeds होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जिसको हमने पल्सेस बोला. अब पल्सेस के क्या एग्जाम्पल्स होंगे? लेट्स सी. सो दीज आर पल्सेस. किडनी बीन्स. किडनी बीन्स क्यों बोलते हैं हम इसे? राजमा, विच इज़ इन हिंदी यू कैन से इट राजमा, बिकॉज जो इसका शेप होता है किडनी बीन्स का, जो राजमा का जो शेप होता है वो किडनी की तरह होता है. ठीक है, किडनी के फॉर्म में होता है, इसलिए हम उसे किडनी बीन्स कहते हैं. ग्रीन ग्राम, मूंग, बंगाल ग्राम, चना, रेड लेंटिल विच इज़ मसूर, एंड अरहर विच इज़ इन हिंदी कॉल्ड एज तूर. सो ये सभी जो होते हैं ये आपके होम में ईज़िली अवेलेबल हैं, एंड आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार उसे देख भी सकते हैं. ठीक है. नाउ देर आर ऑल्सो स्प्लिट पल्सेस. स्प्लिट पल्सेस क्या होते हैं? स्प्लिट पल्सेस वो होते हैं जब हम कभी भी किसी भी पल्सेस को, आप लोग अगर दाल को देखते होंगे, आप सभी
आई थिंक आप सभी प्रोटीन में रिच होता है ये, तो आपने दाल को तो देखा होगा, दाल को तो सभी ने देखा होगा, खाया भी है सबने। तो वो उसे हम एक्चुअली स्प्लिट पल्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो जो अरहर, रेड लेंटिल, ये जो आपको पूरा देखने को मिला, ये सब किसके अंडर आएंगे? ये सब आपके पल्सेस के अंडर आते हैं। क्लियर? एंड इससे जो फूड बनते हैं वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दाल जो हम डेली लेते हैं। ठीक है, सो ये क्लियर हुआ कि पल्सेस एंड सीरियल्स के बीच में आके डिफरेंस क्या होते हैं। Okay, now moving forward, these are, so this is the table in which you can see the edible parts of plants. So what are edible parts? So edible parts क्या होते हैं? So जो parts होते हैं plants के जिसको कि हम eat करते हैं, जिसको हम खाते हैं, तो उसे हम edible parts बोलते हैं plant के। Clear? उसको हम क्या बोलते हैं? edible parts होते हैं plant के। क्लियर? अगर आप लोगों को इसमें डाउट है तो मैं आप लोगों को लाइव क्लास में एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी, बट जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता रही हूँ उसको आप एक बार ध्यान से सुनेंगे। तो ये आप लोग टेबल देख सकते हैं कि जो एडिबल पार्ट्स है प्लांट्स के वो कौन कौन से हैं जिसे हम खाते हैं। रूट्स को हम लेते हैं, जिसमें कि आपको ये टेबल एक बार अच्छी तरह से रीड करना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, फिर हम इसे लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएंगे। ओके, सो रूट्स, फिर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एडिबल पार्ट्स कौन से होते हैं। रूट्स, अब रूट्स के अंडर प्लांट्स के कौन कौन से आते हैं? विच आर कैरोट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो। स्टेम्स, शुगर केन, अनियन, जिंजर, potato. Leaves, mint, spinach, cabbage, lettuce. Flowers, cauliflower, banana flower, ब्रोकली, पम्पकिन फ्लावर। एंड ये जितने फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, नट्स हैं, ये सब आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन मूविंग फॉरवर्ड, okay, now there are some multiple choice questions. We eat roots of, we will discuss actually this multiple choice questions in our live class. That would be more easy. ओके, नाउ फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स क्या होते हैं? कौन कौन से फूड है ऐसे जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं? हमें फूड मिलते हैं जैसे मिल्क हो गया आपका, एग्स, मीट, देन हनी। ठीक है, ये 4 टाइप्स के ऐसे फूड हैं जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं। जितने भी लाइक नॉन वेज एंड वेज दोनों होते हैं। हमें तो मिल्क तो आप सबको पता है कि वेजिटेरियंस जो होते हैं वो मिल्क लेते हैं। एग्स, मीट जो होते हैं वो कौन लेते हैं? नॉन वेजिटेरियन। एंड हनी इज़ ऑल्सो फॉर वेजिटेरियन। सो मिल्क हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स। ठीक है, एंड मिल्क से हम क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं? बटर, चीज़, घी, कर्ड, आइसक्रीम एक्सेट्रा। एंड आइसक्रीम तो आप सबको पसंद है ही। ओके, नाउ एग्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हैंस, टर्कीज एंड डक्स, यहाँ से हमें एग्स मिलते हैं। सो एग्स जो होते हैं वो आप सबको पता है कि इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। नाउ मीट कहाँ से मिलते हैं हमें? वी गेट मीट फ्रॉम हैंस, डक्स, गोट्स एंड फिश। एंड आप सबको पता है कि मीट जो है वो रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा ही लेवल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हनी, वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज। आप सबको पता है ना कि हमें हनी कहाँ से मिलते हैं? हमें हनी बीज से मिलते हैं। एंड ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर डाइटिंग ऑल्सो एंड इट इज़ यूज्ड फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑल्सो। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज़ करते हैं उसमें भी आप हनी का यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए हनी। बट
here is a question that I want to ask you, that we actually honey is very important for us. honey तो बहुत important है, but how honey is being produced? honey कैसे produce होता है, कैसे बनता है? और ये मैं आपसे लाइव क्लास में पूछूंगी कि हनी कैसे प्रोड्यूस होता है. सो मैं आपको इसका ब्रीफ एक बार बता देती हूँ कि जितने भी नेक्टार होते हैं, नेक्टार आप लोगों को पता होगा कि जितने भी आई थिंक इट इज़ नोन एज जो शुगरी फ्लूइड जो होते हैं ना, बहुत ही शुगर टेस्ट के जो फ्लूइड होते हैं जो कि फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं ना उसमें शुगरी फ्लूइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. वो क्यों, वो किस लिए प्रेजेंट होते हैं? जिससे कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, लाइक जैसे हनी बीज हैं, वो वहाँ पे आएंगे, उस नेक्टार को सक करेंगे और वो कहाँ चले जाएंगे? अपने हाइव्स में चले जाएंगे. हाइव्स मीन्स जो मधुमक्खी, जो हनी बीज है उसके जो छत्ते होते हैं, जो मधुमक्खी के छत्ते हम जिसे बोलते हैं, तो हनी बीज के जो हाइव्स होते हैं, उनका जो अपना होम होता है, वो वहाँ पे जाके उस नेक्टार को क्या करते हैं? स्टोर कर देते हैं. अब वो वहाँ जाके स्टोर तो कर दिए, लेकिन फिर वो क्या करते हैं? दे कन्वर्ट दैट नेक्टार इनटू हनी. हनी में वो क्या करते हैं? उस नेक्टार को कन्वर्ट कर देते हैं. एंड वहाँ से जब उसने उस हनी को वहाँ प्रोड्यूस कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, अब क्या होता है कि जो रियरिंग होती है, एज यू कैन सी हियर, जो रियरिंग होती है, द रियरिंग ऑफ हनी बीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर. सो व्हाट इज एपीकल्चर? जब रियरिंग मीन्स एक्चुअली व्हाट, रियरिंग मीन्स आप क्या समझते हैं? रियरिंग मीन्स एक्चुअली जब बहुत सारे हनी बीज को बहुत अच्छे से उसे केयर के साथ में हनी को प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं रियरिंग. ओके, so apiculture is what? The rearing of honey bees on a large scale is called apiculture. And what are apiaries? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे apiaries है, एक वर्ड है apiaries. Here एपियरीज, इसका मीनिंग क्या है कि हनी बीज जो हैं वो एपियरीज में रहते हैं. रियरिंग करने के लिए क्या होता है कि वहाँ पर एक बॉक्स सा बनाया जाता है उनके लिए, जहाँ पे जितने हनी बीज होते हैं उनको और हनी को, दोनों को वहाँ पे अलग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है. उसको बहुत ही केयर के साथ में किया जाता है जिससे उन्हें भी कोई इफ़ेक्ट ना हो, जहाँ पे फिर हनी को प्रोड्यूस किया जाता है. सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ how honey is being produced. And what is apiculture, what are apiaries, all you know. What is nectar, apiculture? Okay, so this is it for you this class. I hope you all understood about this. Okay, now this half of this chapter is completed. From where we get food, there are variety of food available इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया. बहुत सारे वेराइटी ऑफ फूड्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बताया. देन सोर्सेस ऑफ फूड क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. फूड फ्रॉम प्लांट्स मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पे बताया था, लाइक एडिबल पार्ट्स को भी आप लोगों को मैंने बताया. इसके ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप वीडियो में फिर से देख सकते हैं. देन फूड फ्रॉम एनिमल्स, and I'll ask you questions about multiple choice questions in our live class, and I'll make another video in which there is a activity portion, activity 1, 2, 3 and 4. So I hope you all understood and liked this video. So thank you so much.